Good morning, all of you. Physics, Standard 12, Chapter number 1. Now, first topic is Coulomb's law in scalar form. तो ये statement of Coulomb's law, the Coulombian force or electric force both are same. The electric force produced between two charged particles are directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. The Coulombian force or electric force produced between two charged particles are directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. That means F directly proportional to Q1 Q2 by R square. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा K, तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर व्हाट इज K, तो K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. And another equation, K is equals to 1/4 pi epsilon naught 9 into 10⁹ Newton meter square per coulomb square, where epsilon naught is equals to permittivity of free space या permittivity of vacuum, and the value of epsilon naught is 8.85 into 10⁻12 coulomb square per Newton meter square. Here K is equal to proportionality constant 9 into 10⁹ is MKS value. But in converting to CGS, so dyne is a unit of force and the CGS unit of force is dyne. Newton is SI unit of force, dyne is a CGS unit of force. Here meter, centimeter, coulomb. तो कूलम इज अ फोर्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसका सीजीएस यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा स्टेट कूलम, एंड वी नो दैट 1 कूलम इज इक्वल टू 9 into 10⁹ स्टेट कूलम. तो 9 into 10⁹ पहले हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. 11 साइंस में हमने पढ़ा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट ईयर स्क्वायर है तो 10⁴ हो जाएगा. कूलम को स्टेट कूलम में कन्वर्ट करो तो 3 into 10⁹, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर. 3 square 9, तो 9 9 कट. 10⁹ 9 2 जा 18, 5 + 4 9 9 9 18 18 कट, तो K इज इक्वल टू 1. तो वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, CGS वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 1 एंड MKS वैल्यू इज 9 into 10⁹. अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो न्यूटन, तो m1 L1 T - 2, मीटर स्क्वायर L2, कूलम स्क्वायर तो Q2. तो इसका कैलकुलेशन करें हम तो m1 2 + 1 3 L3 T⁻² and Q⁻². एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू IT. थर्ड चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे Q इज इक्वल्स टू IT. दैट मीन्स कि Q1 इज इक्वल टू A1 T1. तो यहाँ पे हमने लिखा Q² है तो A2 T2. तो M1 2 + 1 3 T⁻² -2 -4 and A⁻². Now permittivity of free space is epsilon naught is equals to 8 into 8.85 10⁻12 coulomb square per Newton meter square. तो यूनिट इसका उल्टा है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला पे इन्वर्स कर दें, यानी जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस. तो m -1 L -3 T +2 and Q +2 and similarly this. अब MCQs के लिए 3 इक्वेशन है. बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स एयर मीडियम अगर एयर मीडियम है तो फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, या फिर Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square.
लेकिन अगर दोनों चार्ज के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के एज्यूम किया है, तो न्यू कूलम्बियन फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ बाई के. Remember it, here K is equal to not proportionality constant, K is dielectric constant, and dielectric constant always greater than 1 is depends on medium, and dielectric constant is unitless. टू चार्ज पार्टिकल, उसके बीच में हमने T फॉर थिकनेस, T जितने थिकनेस वाला हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसके लिए ये T जो है वो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब या थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो न्यू कूलम्बियन फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज एफ डैश इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R इज टोटल डिस्टेंस माइनस T प्लस T रूट ऑफ K होल स्क्वायर. Once again, here capital K is equal to dielectric constant and small k is equal to proportionality constant. Now go to the next theory, Coulomb's law in vector form. ये most important theory है, Coulomb's law in vector form. ये origin O. Let's position vector of charges Q1 and Q2 is R1 vector and R2 vector respectively. So distance between two charges are 1 magnitude or R21. Electric force on Q2 due to Q1 is denoted by F21. जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हम पहले लिखेंगे, और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उसके बाद आएगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन सेकेंड मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम, electric force applied on second charge by first charge is denoted by F21 vector. So F21 vector is equals to K Q2 Q1 by R21 square. Here R21 cap is unit vector, और unit vector हमने 11th साइंस में पढ़ा. But we know that R21 cap is equals to R21 vector divided by mode of R21 vector. बट अगर मैग्नीट्यूड हटाओ तो ओनली फॉर R21, एंड R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 वेक्टर. तो R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू अनदर थिंग, मैग्नीट्यूड हटाओ तो ओनली फॉर R21 एंड मोड ऑफ R2 माइनस R1. हम पहले R21 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, तो K Q2 Q1 बाय R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप की वैल्यू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R21. तो नीचे हो जाएगा R21 स्क्वायर R21 क्यूब. लेकिन अगर यहां पर हम क्यूब कर रहे हैं तो यहां पर भी क्यूब करना पड़ेगा. तो R21 क्यूब इज इक्वल्स टू मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब. तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, सो K Q2 Q1 by mode of R2 minus R1 cube into R2 minus R1. This is a force applied on second charge by first charge. Now similarly, electric force applied on first charge by second charge is denoted by F12 vector is equal to K Q1 Q2. सिर्फ आपको क्या करना है, 21 की जगह 12 लिख देना है. तो R1 माइनस R2 R1 माइनस R2. बट R21 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1. लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा. जैसे कि हमने 11th साइंस में पढ़ा डिस्प्लेसमेंट. तो सपोज आपके लिए बात करें तो स्कूल से घर का डिस्टेंस और घर से स्कूल का डिस्टेंस सेम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऐसे ही यहाँ पर R1 माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1. बट अगर मैग्नीट्यूड है तो ये तो वैल्यू हो गया, तो दोनों के लिए वैल्यू सेम होगा. तो अगर यहाँ पे हम R1 माइनस R2 की जगह
R2 माइनस R1 लिखे तो यहाँ पे आएगा माइनस, बट मैग्नीट्यूड में सेम है। तो ये तो इक्वेशन हो गया F21 का। सो देयरफॉर F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। दैट मीन्स कि Coulombian force applied on first charge by second charge and electric force applied on second charge by first charge both are in same magnitude and in opposite direction, and therefore the Coulomb's law agrees with Newton's third law of motion, जो हमने 11th साइंस में पढ़ा। अभी ये दोनों फोर्स हम डायग्राम में मेंशन करें। सपोज Q1 and Q2 both are positive charge. If Q1 and Q2 both are positive charge, तो attractive repulsive force produced between two charges। तो ऐसे हम दिखाएंगे F12, that means electric force applied on first charge by second charge, और ऐसे हम दिखाएंगे F21 वेक्टर force applied on second by first, in which direction? Opposite। If both charge are unlike charge, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये दोनों हमें ऐसे दिखाएंगे, यानी अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन हम यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करें या बोथ आर नेगेटिव, तो रिपल्सिव फोर्स। तो ये हुआ Coulomb's लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम फर्स्ट न्यूमेरिकल ले एक्सरसाइज में, फर्स्ट सम एक्सरसाइज में 1.1। What is the force between two small charge spheres having charge of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed at 30 centimeter apart in air medium। तो अभी हमने पढ़ा एयर मीडियम के लिए फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, k q1 q2 by r स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू k q1 q2 by r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, डिस्टेंस इज 30 बट सेंटीमीटर, कन्वर्ट इंटू मीटर तो 10 raised to minus 2 होल स्क्वायर, तो 6 into 10 raised to minus 3 न्यूटन। तो आज दो थियरी और एक सम हुआ, Coulomb's लॉ इन स्केलर फॉर्म, Coulomb's लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड एक्सरसाइज में फर्स्ट सम।